تیری محفل سجانا میرا کام تھا، تیری محفل سجانا میرا کام وسلم کی سیرت کے چند گوشے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے درمیان میں آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پنپ رہی ہے تو وہ نفرت، دشمنی، حسد، بغض اور کینہ۔ ہمارے یہاں شادی ہو تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے گاؤں میں جسے دو چار کو منانا نہ پڑے۔ کسی کے بھائیے ناراض ہیں، کسی کے بھائیے ناراض ہیں تو کسی کے بہنوئی ناراض ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے بھائی صاحب، بالکل صحیح بتا رہے ہیں جی مفتی صاحب، بات ٹھیک ہے بالکل یہ بات حق بات ہے کہ کوئی بہنوئی کو ہاتھ جوڑ گیا کہ یار مان جائے، کوئی بھائیے کا یار مان جائے، یار کوئی پڑوسی کا یار مان جائے، کوئی خاندانی کے، اور پھر بات کیا آ گئی ہے کہ اگر وہ کھا گیا تو میں نہیں کھاؤں گا تیرے گھر۔ جیسے کہ یہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا، یہ تو کچھ کرتا ہی کچھ نہیں ہے اس کے، وہ اللہ کا ولی ہے، صاف ستھرا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا، اس کا سجدے میں سر ہے، سیدھی یوں کہہ رہا وہ کھا گا تو میں نہیں کھاؤں گا تیرے گھر۔ ایک ساڑو کہہ رہا وہ والا بڑا والا کھا گا تو چھوٹا والا کہہ رہا میں نہیں کھاؤں گا تیرے گھر۔ قتل کر دیا، کیا کر دیا معاف نہیں کر سکتے۔ یہ بیچارہ جس کے گھر شادی ہے یہ ہاتھ جوڑ لیا کہ بھئی اللہ کے واسطے معاف کر دے، میرے گھر پہ بارات کھڑی ہے، مہمان ہیں، 100-150 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ یہ دیکھو اللہ کا واسطہ دے رہا ہے اور یہ معاف کرنے تیار نہیں۔ اور بات جب نکالو کہ ناراضی کی کیا بات ہے، جی میری طرف توجہ رکھو، جو کام نکل رہا ہے کہ بھئی ناراضی کیا کس بات کی ہے، تو جب حاصل کرام نکلے گا تو کہ وہ انہوں نے میڑ کاٹ لی میری، بھئی میڑ کاٹ لی، تو بھی کاٹ لی، کر پورا کیا کرے گا میڑ کاٹ کے؟ زمین کتنی ملے گی قبر میں؟ کھیت میں پورے میں قبر بن جائے گی۔ ہرگز ناراضگی مت کیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے، محبت سے بات کیجیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی ملتا۔ اگر آپ کے دل میں نفرتیں پیدا ہیں تو آپ نفرتیں بات کی بات ہوگی، اور اگر آپ کے دل میں اللہ نے محبت عطا کی پیش کی ہے تو آپ بھی دوسروں کو محبت دیجیے۔ موقع مت دیجیے کسی کو منانے کا اپنے آپ کو۔ آپ تو خود ہی اعلان کر دیجیے کہ ہماری طرف سے ہر ایک کسی کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی کا اعلان ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ہمارے درمیان میں ناراضگیاں ہوتی چھوٹی چھوٹی سی باتوں اور معاف کرنے تیار نہیں ہوتے۔ بتائیے تم میں سے کوئی قاتل کو معاف کر دے گا؟ قاتل کو معاف کر دے گا؟ قاتل تو دوسری بات رہی، گھر میں ڈیلا مار دیا نا کسی نے تو یہاں سے لے کر مرادآباد تک اور پھر الہ آباد تک، اور وہاں بھی ہاتھ نہ لگا تو سپریم کورٹ تک پیچھا کرے گا، چاہے زمین جائیداد سب کچھ ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ کروانا جیل میں سے قید کروانا ہے اسے بھرپور بدلہ لینے کا۔ انتقام کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے ہمارے درمیان۔ آج زیادہ تر معاشرہ جو ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم بدلہ لینے اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اوپر دکھانے کے چکر میں تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ وہ ہر کسی، کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ ہو، آپ ہو ہم ہو، ہر کسی میں نفرت اور اپنے آپ کی بڑائی توپ کی اس میں۔ آئیے رسول اللہ کی زندگی کا ایک گوشہ ہے۔ ہمارے رسول نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی، کیوں کی؟ اس لیے کہ وہاں کے کفار مشرکین نے اتنا زیادہ ستایا کہ وہ لوگ جانی دشمن ہو گئے۔ مکے سے طائف میں جا کر آپ نے سوچا کہ وہاں تبلیغ کروں، وہاں کے لوگوں نے آپ کو اتنا لہو لہان کر دیا کہ سارے جسم اطہر کو خون پر خون بہہ گیا، آپ کا چہرہ خون میں ہو گیا۔ جب لوگ جانی دشمن ہو گئے اور کوئی انہوں نے راستہ ایسا نہ چھوڑا کہ جس پہ آپ کو دشمنی اور ظلم و ستم نہ کی۔ توجہ کرنا میری طرف سے بھی حضرات۔ اب جب آپ نے ہجرت کے لیے تیاری کی تو آپ کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب مکے سے ہجرت کے لیے آپ اونٹ پر سوار ہوئے تو ایک مکے کے کافر میں ہی جانی دشمن تھا، جس اونٹ پر سوار ہوئی تو اونٹ کے پچھوٹے میں ایک نیزہ چبھا دیا، جس کی وجہ سے اونٹ بگڑ گیا۔
और उस वक्त आप हामिला थी। हमल से अगर कोई औरत हो तो हम और आप भी उस पर रहम करते हैं कि यार इससे कुछ मत कहो यार। तो अब जब ऊँट बिका तो ऊँट बिदकने की वजह से आप नीचे गिरे और आपको इतनी चोट लगी कि उसी की वजह से पेट के बच्चा जो हमल था वो भी, और उसी के इन्फेक्शन की वजह से, तकलीफ की वजह से आपका इंतकाल। इन्ना लिल्लाहि। सहाबा इकराम ने जब हुजूर को खबर दी इस बात की तो रसूलुल्लाह का चेहरा बिल्कुल गमगीन हो गया और आप ऐसे रोए कि आप सिसकियां लेकर रोए, सिसकियां लेकर रोए। यकीनी तौर पर बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है। बेटियों का गम अच्छे खासे इंसान को बूढ़ा कर देता है। बेटी अगर ससुराल से आकर खुशी सुनाए कि अब्बा सही रह रही है, फिर भी बाप रो कर ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और अगर तकलीफ में सुनाए कि तकलीफ में हूँ अब्बा, तो बाप के गम के कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब बताइए हुजूर से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला होगा? कोई नहीं। हुजूर रोने लगे, गमगीन हो गए। जब हुजूर ने फरमाया कि जब गुस्ल हो जाए तो मुझे खबर कर। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की हुजूर गुस्ल तो हो गया लेकिन कफन के लिए कपड़ा नहीं। तवज्जो करें, जो रात दिन माल दौलत के चक्कर में भाग रहे हैं कि किसी सूरत से तरक्की पा जाऊं, मालदारी हो जाऊं, प्लाट के एक के बाद दूसरे पे नंबर लगा दी और एक एकड़ खरीद ली तो दूसरी का नंबर लगा दी। हद इतनी आगे बढ़ गई। जब रसूलुल्लाह ने ये बात सुनी कि कफन के लिए भी कपड़ा नहीं है, आप खड़े हो गए और कहा ये उसकी बेटी है कि जो अरब के तुज्जार की मलका हुआ करती थी। हजरत खदीजा की तरफ इशारा करके फरमाया कि जो अरब के तुज्जार यानी ताजिरों की मलका हुआ करती थी। और हजरत खदीजा इतनी माल की मालिक थी कि सारे तिजारतियों का अगर माल लाया जाए तो अगर 1 किलो सारे तिजारतियों का तो 1 ही किलो आपका माल जाएगा। एक मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ, इतनी माल की मालिक थी। कहा ये उसकी बेटी है कि जिसके पास आज कफन के लिए कपड़ा नहीं। आपने अपनी चादरें नूर उतारी, हमारी बहनें और माएं भी तवज्जो करें, आपने अपनी चादरें नूर उतारी और उतारने के बाद साहब इकराम से कहा कि लो जाओ मेरी बेटी को इससे कफन। तजहीज़ और तकफीन हो गई। मेरे आका मक्के से मदीने को हिजरत कर गए। हालात बदले, तारीख ने करवट लिया। ऐसा हुआ कि मुसलमानों का गलबा हुआ। हर तरफ जंग ओहद, जंग बदर होने के बाद अब मुसलमानों का गलबा हो गया, मक्के को फतह कर लिया गया। आज मोहम्मद अरबी के हाथ में ताकत है। आज जिसे चाहे कत्ल करा दे, आज जिसे चाहे सूली पर लटकवा दे, आज जिसके साथ जो चाहे वो अंजाम करें, जिसका चाहे जो नतीजा करें। आप जिस तरफ इशारा कर दें, जिस दुश्मन की तरफ इशारा कर दें, उसकी जरा देर में गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए। लेकिन आज यही जालिम कपकपा रहा है, थर्रा रहा है कि अगर आज सबसे पहले किसी को कत्ल किया जाएगा तो आज मुझे किया जाएगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह की बेटी का कातिल हूं। आज ये थर्रा रहा है कि सबसे पहले अगर किसी को सजा दी जाएगी, किसी की सजा का ऐलान होगा तो वो मैं। आखिर जब मेरे आका मक्के में दाखिल हुए तो ये मेरे आका के सामने खड़ा हुआ, शर्मिंदा है, आंखें झुकी हुई है, सर झुका हुआ है। मेरे रसूल ने खिताब फरमाया लोगों से, खुतबा दिया लोगों को। ये एक मौके पर सामने आया हुजूर और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ये सुना है कि तुम बड़े बड़े जालिमों को मुआफ कर देते हो, तुम बड़े बड़े जालिमों को दरगुजर फरमा देते हो, तुम बड़े बड़े जालिमों को, कातिलों को एक लम्हे में माफ कर। क्या अगर कोई कातिल तुमसे माफी तलब करे, क्या कातिल ज़हन को हासिल करना हमारे दरवाजे पर जो आकर माफी मांगता है वो कातिल नहीं होता है, सिर्फ हमारे बुग़्ज़ और हमारी दुश्मनी का शिकार होता है। रसूलुल्लाह से अर्ज करता है कि मैंने सुना है कि आप कातिल और जालिमों को माफ कर देते हैं। कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह किसी पर जुल्म करने नहीं आया है, किसी से बदला लेने नहीं आया है, बल्कि लोगों को माफ करने के लिए, लोगों को माफ करने के लिए आया है। मेरे रसूल की सीरत का एक टुकड़ा ये बताता है कि बेटी के कातिल को माफ करके आपने इस उम्मते मुस्लिमा को ये दर्स दे दिया कि छोटी मोटी
आपकी नाराजगियां कोई हैसियत नहीं रखती हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कातिल भी माफी मांगना आ जाए तो उसके लिए भी माफी का दरवाजा होता है। माफ करने वाले की इज्जत तो नहीं होती है। रसूलुल्लाह ने एक मौके पर कसम खाकर फरमाया कि माफ करने से किसी की इज्जत नहीं घट सकती है, और अगर घट जाए तो क़यामत के रोज अल्लाह से मैं उसको इज्जत लेकर। दुनिया में इज्जत चाहिए, रसूलुल्लाह के हाथों से इज्जत चाहिए आपको, बताइए जरा। अरे रसूलुल्लाह के हाथों से जिसे कुछ मिल जाए, मेरे रसूल वादा करना है किसी चीज का, तो यार दुनिया बदल सकती है, कायनात बदल सकती है, मेरे रसूल का वादा नहीं बदल सकता। रसूलुल्लाह ने गरीबों को सहारा दिया, बेवाओं को सहारा दिया है रसूलुल्लाह। अरे कभी किसी गरीब की हमदर्दी तो करके देखना, कभी किसी दुखियारे की बात तो सुनकर देखना, अरे किसी कमजोर का कभी दर्द तो सुन के देखना। आज हम अपनी शेखी तोप की और बड़ाई, कोई आ जाए ये मकान भी बना लिया, ये वाला प्लॉट भी खरीद लिया, और अब बस ये मोटरसाइकिल आप गाड़ी लेने वाला हूँ। हमारे पास अगर कोई मुस्लिम के पास मुफ्ती साहब अगर पैसा आ जाए तो सबसे पहले 3 काम करते हैं। पहला काम क्या होता है, बढ़िया वाला घर में पैसा लगाएगा। दूसरा काम फिर क्या करेगा, गाड़ी खरीदेगा जिससे पड़ोसियों को जीने नहीं देगा। और तीसरा काम कि लड़की की शादी करूँगा, 15 लाख की करनी, रिश्ता को बढ़िया वाला बताओ। ये 3 काम करेगा। और गैर मुस्लिमों के पास पैसा आ जाए, पता क्या करते हैं, पहले बच्चों की पढ़ाई पे पैसा लगाते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे। और दूसरा काम स्कूल बनाएंगे या हॉस्पिटल बनाएंगे। पढ़ाई में एक भी बच्चा काम हो गया, कामयाब हो गया एक भी बच्चा, तो जनक कितने घर बना देगा और कितने प्लॉट खरीद देगा। समझ में आई बात? अपने बच्चों को तालीम दो और गरीबों की हमदर्दी करना सीखो, कमजोरों की सुनना सीखो, दुखियारों का दुख सुनना सीखो। रसूलुल्लाह की सीरत से ये सबक भी मिलता है। रसूलुल्लाह, हमारे पास कोई नेताजी आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, हम फिर किसी की तरफ तवज्जो नहीं करते। अरे कोई आप अगर आवाज दे दे कि अरे वो क्या हो गया, अरे बंद कर दरवाजे, इसका तो यही काम। हम नहीं सुनते किसी की, हम किसी की नहीं सुनते, बस आखिरी बात अपनी बात सुनना पड़ता। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे हुए, एक पागल बावली औरत, कैसी हालत, कैसे बाल बिखरे हुए, चेहरा गर्द आलूद है और बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं, पैरों में जूतियां नहीं है, जिसकी कोई कदर नहीं करता, कोई सुनता नहीं, जिसकी मक्के और मदीने में कहीं कोई नहीं सुनता। गुर्बत की मारी हुई, बेवकूफ बावलों की कौन सुनता है, अच्छे लोगों की नहीं सुनते। आज तो समाज हमारा उस तरफ चला गया। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर से खड़े होकर और हुजूर सहाबा इकराम जिल्ला सहाबा के दरमियान में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े उमरा और मुआसा के दरमियान में बैठे हुए हैं। इस पागल औरत ने हुजूर को यूं करके इशारे से बुलाया, ऐसे करके। जब हुजूर ने उसकी तरफ तवज्जो की तो उठे चले गए और उसके करीब जाकर खड़े हो गए, इस दस्त बस्ता खड़े हो गए। कौन है ये, तवज्जो करो। कायनात जिनके सत्य में पैदा की गई है, आसमान जिनके सत्य में पैदा किया गया है। आज हम और अल्लाह उस रसूल का जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे रसूल का सदका है। वो एक पागल औरत को बुलाने से, इशारा करने से उठ के चले गए और जाके बिल्कुल करीब खड़े हुए। कहा बताओ क्या है। सहाबा किराम उठ के आ गए, महल्ले के लोग आ गए। कहा हुजूर आप क्यों उठ के आ गए इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान में। कहा ये पागल है और इसका तो यही काम है, इसकी कोई नहीं सुनता है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता है। आप कहाँ गए? सहाबा ने कहा हुजूर आपके ऊपर बारे नबूवत है, आपको तबलीग यकीन करना है। आपको 23 साल जिंदगी में, 23 साल ऐलान नबूवत के बाद आपको बहुत सारा काम करना है। आपको दीन की बात दूर तक पहुँचानी है, तबलीग करनी है। आपके कांधे पर बहुत सारा बोझ है। आपको इतना वक्त नहीं कि आप पागलों की बात सुने। अल्लाह जब मेरे रसूल ने इतनी बात सुनी तो मेरे आका करीम जो है चेहरे का रंग बदल गया और सहाबा इकराम की तरफ बड़ी आपने ऐसे नजर से देखा कि सहाबा इकराम पानी पानी हो गए कि आज हो सकता है कि रसूलुल्लाह की नजर के अंदर थोड़ा सा नाराजगी पैदा हो गई। रसूलुल्लाह ने नाराजगी के साथ सहाबा इकराम की तरफ देखा और सहाबा इकराम पीछे हट गए। मेरे रसूल ने कहा बताओ क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा मकसद क्या है बुलाने का। उस पागल औरत ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। कहा बताओ क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा मकसद क्या है बुलाने का मुझे। कहा रसूलुल्लाह मैं आपको बाहर जाकर बताऊंगी बस्ती
पति से, रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चल पड़े। अल्लाह अल्लाह वो औरत आगे आगे जा रही है। मेरे प्यारे को जब बस्ती से निकल गए तो उस औरत ने कहा हुजूर यहाँ नहीं बताऊंगी बल्कि जंगल में जाकर बताऊंगी। अल्लाह अल्लाह मेरे रसूल कायनात के मालिक जा रहे हैं, कायनात जिनके सत्ते में बनी है, अल्लाह के महबूब जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, बताओ तो सही। अल्लाह अल्लाह इस ऐसे रसूल जो रसूलों के नबी है, जो कि रसूल जो तमाम नबी अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, इनका मकाम क्या है जरा आप देखें तो सही। वो एक पागल औरत के साथ जा रहे हैं, बस्ती से निकाल कर ले गई, फिर जंगल के पार ले गई। जंगल में एक जगह रेतीली जमीन है, उस पर मेरे रसूल को बिठा लिया और कहने लगी जरा तवज्जो कर लो और दिल की तख्ती पर इन जुमलों को मेरे लिख लो। कहा है अल्लाह के रसूल बैठ जाओ। रेतीली जमीन पर बिठा लिया, कोई दरी नहीं बिछाई, कोई पाल नहीं बिछाया, कोई कुर्सी नहीं बिछाई। अल्लाह मेरे रसूल बैठ चुके हैं। अब कहा बताओ क्या कहना चाहती हो। अर्ज करने लगी ए अल्लाह के रसूल मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो महल के लड़के मेरे बेले मारते हैं, पत्थर मारते हैं, मेरी तकलीफ होती है। ए अल्लाह के रसूल महल्ले के लड़कों से मना फरमा दीजिए कि वो मेरे पत्थर ना मारे, मेरे ईंटें ना मारे, मेरी तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है मैं आज से मना कर दूंगा, कोई नौजवान या कोई भी इंसान तेरे आज के बाद पत्थर नहीं मारेगा। कहा हुजूर मैं कुछ और भी अर्ज करना चाहती हूँ। कहा बताओ क्या अर्ज करना चाहती हो, बताओ क्या कहना चाहती हो। हुजूर कहा मेरी दूसरी शिकायत ये है कि मैं जिस रास्ते से भी गुजरती हूँ लोग मुझे पागल पागल कहकर मेरी मजाक बनाते हैं। जब लोग मुझे पागल कहते हैं, मुझे दीवानी कहते हैं, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह मेरे रसूल ने जब ये बात सुनी कहा ठीक है आज के बाद मना कर दूंगा, आज के बाद पागल ना कहेगा, कोई तुझे देर ना मारेगा, कोई तुझे तकलीफ ना पहुंचाएगा। बताओ कायनात का रसूल अल्लाह का महबूब एक पागल औरत के सामने बैठ उसकी हाँ कर रहा है, उसकी बात को सुन रहा है। आखिर में बात कहती है कि हुजूर एक शिकायत और है, वो मेरे घर वालों की है। मैं पागल हूँ, मेरे दिमाग में थोड़ी सी कमी है। जब रात का वक्त आता है अल्लाह के रसूल मैं ज़बान से न जाने क्या क्या बकने लगती हूँ और पता नहीं मैं क्या क्या कहने लगती हूँ। मैं रात में सोते सोते उछलती हूँ कि ज़बान से पकती हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं और रात की तन्हाई में दरवाजा बंद करने के बाद मेरे घर वाले मुझे निकाल देते हैं। मुझे अंधेरी रात में बड़ा डर लगता है, सांप बिच्छुओं से कुत्तों के भौंकने से मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कभी किसी कोने में जाकर टपकती हूँ, मैं कभी कहीं छिपती हूँ। अल्लाह के रसूल इसकी बात सुन रहे हैं, मेरे आका की आंखें नम हो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अरे किसी का दर्द सुनना सीखो, मेरे रसूल की सीरत ये बताती है कि गरीबों का दर्द सुनना चाहिए, दुखियारियों का दर्द सुनना चाहिए। अरे कभी किसी का दर्द सुन के देखना तो इस जिंदगी का नाम बदल जाएगा, तो इस जिंदगी का तरीका बदल जाएगा। मेरे रसूल सुनते चले जा रहे हैं और मेरे रसूल आखिर एक जुमला करते हैं कि औरत अगर तुझे कोई डेरा मार दे तो तुझे तकलीफ हो जाए, मेरे दरवाजे पर आ जाना, तेरे लिए वक्त दरवाजा खुला हुआ है। जब तुझे कोई बात कहे तो कायनात के रसूल की बात मान जाना। जब तुझे कोई तेरे घर वाले हाथ को घर से निकाल दे, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, कोई कायनात का दरवाजा बंद होता है, लेकिन सैयद खलीफा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। आज रसूल आने वाले आज गुफरान साहब इस निकाह की तकरीर में तशरीफ लाने वाले मैं आपने दर्स देकर के बात कर देना चाहता हूँ। क्या नबी इसी चीज को मांग रही है, तो खुदा की क़यामत करने को मांग रही है। कोई कह रही है कि चीज कर अल्लाह के दोस्त रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपना लो। आज ये बनाने के लिए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे रसूल कायनात का इंसान के लिए आए हैं। अगर किसान चाहे क्या किसानी में बरकत चाहता है, मेरे जिंदगी को आगे बढ़ा दे। अगर नेता चाहता है नेतागिरी में कामयाब हो जाए, मेरे जिंदगी को आगे बढ़ा दे। कोई आलिम चाहता है कि मैं तरक्की कर जाऊं, तो वहां मेरे जिंदगी में तरक्की मेरे आगे बढ़ा दे। कायनात के अंदर एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी जात है जो हर मानिए हर औलाद हर तबके के लिए हर शौले के लिए हर आदमी के लिए एक आवाज है बना नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब भाई, आला हज़रत, बहुत खूब। निज़ामुद्दीन साहब किबला। मैं चाहता ये था कि अपनी थोड़ी सी देर में मैं कुछ और भी गोशे बयान करता, लेकिन उलमा की कसरत है, ये बड़े बड़े बेहतरीन खतीब हैं और बड़े बड़े जलसों में शिरकत करते हैं। इनकी शिरकत
जिस मदरसे में पहुंच जाए वो मदरसा कामयाबी की दलील बनता है। मौलाना दानिश साहब बैठे हैं, मुफ्ती दानिश साहब बैठे हैं, मुफ्ती बिलाल साहब बैठे हैं, मुफ्ती नाज़िम साहब बैठे हैं, मुफ्ती सहीमुद्दीन साहब बैठे हैं, बाकी के नाम नहीं जानता, उलमा है। ये वो हज़रात हैं कि जो किसी भी मदरसे की कामयाबी की दलील बन जाते हैं। किसी बस्ती में पहुंच जाए तो उसको इस्लाम की दलील बन जाते हैं, ज़मानत बन जाते हैं। ये जिस जलसे में पहुंच जाए वो कामयाबी की दलील बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुदर्रिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं, ये मुहद्दिस भी हैं और मुक़र्रिर भी हैं, खतीब भी हैं। इनकी ज़ातों का हम पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं इन सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने बड़े उलमा के दरमियान में मुझे जैसे नाचीज़ हकीम फ़कीर को बोलने का मौका मिला। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपनी ज़िंदगी के अंदर आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रसूल की ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल बनाओ और कामयाब होकर चले जाओ। अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से, सच्चाई के साथ और धोखेबाजी से पार करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अगर आपको कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद में पहुंच जाओ, 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अपने रसूल का वास्ता पेश करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी कामयाबी होती हुई नजर आएगी। मेरे रसूल की बारगाह वो है, मेरे रसूल की बारगाह वो है जहां अपनों का तो क्या कहना, वहां गैर भी खाली नहीं लौटा करते हैं, बल्कि इसकी तर्जमानी तो सही माना में आपको कोई करेगा तो बरेली में रहने वाला फकीर कर सकता है, इल्म हिकमत का शहरयार कर सकता है, इल्म हिकमत का ताजदार कर सकता है। सैयदी सरकार आला हज़रत कहते हैं वाक़या जूदो करम है, शहीद तेरा नहीं नहीं ताही मानने आया तेरा। और मेरे प्यारे और आदराब इरशाद फरमाते हैं कि मेरे कतरा कतरी नहीं होगा। किसी से क्या मांग सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, किसी का कतरा दरिया नहीं बन सकता है, लेकिन मेरे रसूल का कतरा वो है कि मांगे रसूल से कतरा कतरी नहीं होगा। दरिया बहा दिए हैं, डूबे बहा दिए हैं। और मेरे प्यारे आखिर में शेर के साथ मैं कभी लहजे में शेर नहीं पढ़ता हूँ आज, लेकिन इनकी मोहब्बतें लहजे में सुनाऊंगा। शादी में है, याद रहेगी कि मुफ्ती गुफरान साहब की शादी में लहजे में शेर पढ़ा। बड़े मोहब्बत वाले आदमी हैं। पहले आपकी बस्ती में बहुत बार आए हैं, लेकिन अच्छे से आपको पहचान नहीं, कोई सादे लिबास में आए थे जब आए थे। ठीक है, रसूलुल्लाह से मांगने का, और मांगा तो किसी से भी जा सकता है, लेकिन देने के लिए दिल चाहिए। बिल्कुल, और वो दिल के साथ क्या चाहिए, हाथ भी चाहिए, मुंह भी चाहिए देने के लिए, और जेब में दम भी चाहिए देने के लिए। जेब में दम तो होता है सबकी, लेकिन देने के लिए दिल चाहिए। ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह से देखना, बारगाह देखें और कौन देता देने को चाहिए, कौन देता देने को चाहिए, कौन देता देने को चाहिए, देने वाला सच्चा नबी इनके तो बरकत नहीं, जितने ज्यादा देने से अच्छे हैं। ये 10 साल हमारे साथ पढ़े हैं, थोड़े बहुत नहीं, 10 साल लड़ाई भी की इन्होंने, झगड़े भी, पता नहीं मार पीट भी हुई, खेले भी एक साथ, पढ़े भी एक साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बड़े बड़े आलिम बन गए। ये सब यादें ताज़ा है बस इनकी। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अगर कहने सुनने में कोई गलती खामी हुई हो, मुझसे तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने के बाद